चलिए। Good morning, students. As you know that these days you are being taught under the proper guidance of Gaya Guidance Program. Today is Krishna Janmashtami. That is why I wish you all happy Krishna Janmashtami to you all. Today I am going to teach you about removal of two. Previous time I have already taught you about narration, and I hope or expect that you must have understood the entire things whatever I taught you regarding narration. In this way, today I teach you about removal of two, and it is also called remove two. It is very important in English grammar. Every year, such type of question from remove to always come in the examination. That is why it is very essential for you to learn about it, so that you could not miss of remove to in the examination. You should also know that English grammar's number is just like mathematics. Since in mathematics, when you give the proper answer or correct answer, then you are entitled to get full number, full marks. Suppose that one question fetches in grammar 5 marks. If you have already solved it correctly, then you will get 5 marks. But if you do not solve it in correct way, that is why you will get them nothing, only 0. Such type of happens in mathematics also. If you solve the maths correct, you will get full number, full marks. That is why in mathematics one can get 99 marks. It is possible, but in English it is not possible, because there are question answer or literature questions. In grammar you will get full marks if your sentence is correct. But whenever you come into question or answers, that is literature, if one question fetches there 5 marks, how much better you have already written about that questions, you are not sure that you will get full marks, because it is literature. In 5 marks you will get only 4 or 3. But in English grammar, such type of things never happens. If you have solved it correctly, you will get full marks. That is why the result is that English grammar enhances or boosted the number in English. That is why it is very essential to you have to concentrate or give a proper attention towards English grammar. It doesn't mean that you don't pay in literature too, but since grammar gets full marks, that is why let us now start. Today I tell you or teach you about removal of two or remove two. First, I should know what is remove. R-E-M-O-V-E. Remove माने हटाना, हटाना, लुप्त करना. इसी से बन गया रिमूवल, यानी हटाया जाना. यानी रिमूव को हटा दीजिए, यानी टू को हटा दीजिए. बट आपको यह भी देखना होगा कि रिमूव के हटाने के बाद सेंटेंस में जो बताइएगा, ट्रांसफॉर्म कीजिएगा अगर सेंटेंस में रिमूव टू हटा करके, तो उसमें आपको ये देखना है कि इसका अर्थ गलत नहीं हो, वही अर्थ निकले. फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन से यू आफ्टर राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, जैसे कि the coat is too long. The coat is too long. यानी कोट जो है बहुत ही लंबा है. और टू का अर्थ ये एडवर्ब है. टू का अर्थ उचित से अधिक, और टू का अर्थ भी होता है, ऑल्सो भी. और टू का अर्थ उचित से अधिक, उचित
से अधिक, कुछ इससे अधिक। और टू का दूसरा अर्थ होता है भी। टू का दूसरा अर्थ होता है भी। इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे टू का अर्थ होता है। तो यहां है द कैट इज टू लॉन्ग, द कोट इज टू लॉन्ग, यानी कोट जो है बहुत ही लंबा है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। तो इसको ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे करेंगे इसको, द कैट, द कोट इज लॉन्गर देन it is proper, और फिर दूसरा इसमें शुड बी भी लगा दें, इट शुड बी लगा दीजिएगा, इट शुड बी। अब मतलब यहां देखिए, पहला है यानी कि ये कोट इज टू लॉन्ग, इसका हम बनाया यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म में कोट इज लॉन्गर देन इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, यानी कोट जो है यानी जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, इतना इट इज प्रॉपर यानी रहता है यानी सही, उससे भी ज्यादा है, अधिक है। और फिर इट शुड बी, इसे होना भी चाहिए, उतना ही होना चाहिए, यानी दो तरह से बना सकते हैं। ये ऑब्लिक दिए हुआ या तो इट इज देन इट इज प्रॉपर लिखिए या इट शुड बी, इसका यानी कि ये होगा। अब आइए यार किसी तरह से आएगा, अच्छा इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, यानी अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि द कोट इज ओवर, या फिर एक्सट्रीमली, TREMELY, एक्सट्रीमली, द कोट इज ओवर एक्सट्रीमली लॉन्ग, इसका इस तरह बना सकते हैं, द कोट इज ओवर या एक्सट्रीमली लॉन्ग, यानी ओवर ज्यादा, एक्सट्रीमली वाला भी अधिक होता है, अधिक ज्यादा है, समझ गए। अब आइए दूसरा यानी सेंटेंस जो आएगा, ही इज टू वीक टू लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट माने उठाना, लिफ्ट द बॉक्स, ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है, उचित सभी तक, ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, वो इतना कमजोर है कि वो बक्सा को उठा नहीं सकता है, इसका मानना। और इसको हम कैसे यानी ट्रांसफॉर्म में हम बनाएंगे, यानी टू हटा करके क्या लिखेंगे, ही इज सो वीक, अब यहां पर लगा देंगे दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, अक्सर इस प्रकार का ही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जामिनेशन में, ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, यानी टू वीक माने अधिक ही कमजोर है, टू लिफ्ट द बॉक्स, कि वो बक्सा को उठा सके। तो उसका हम बनाया यानी कि रिमूव टू हटा दिया, इसका टू देखिए हट गया, इसमें टू नहीं है, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, कि वो बक्सा को नहीं उठा सकता, यही रिमूव टू का हो गया। समझे, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म फॉर्म, यानी कि जो बदल दिया गया है, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में हो गया, he is so weak that he cannot lift the box. Now let us come here and I will dictate you through my writing whatever I have written to learn you much more
इन द बेस्ट वे। टू एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है भी और तो, जैसा कि आपको हम बताया मैंने। अच्छा, अब भी का क्या मतलब है वहां पर? यहाँ पर तो भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर तो है बहुत उचित से ज्यादा अधिक। अभी कब हम कर देंगे? जैसे कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू यानी कि मैं भी जा रहा हूं, तो वहां पर ये हो गया। अब यानी टू का अर्थ होता है उचित अधिक से मोर। यहां पर जो आ रहा है टू, वो उचित से अधिक यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा हो रहा है। जब इसका प्रयोग उचित से अधिक अर्थ में होता है तब इसके द्वारा सब्जेक्ट के नकारात्मक गुण या कार्य क्षमता बताता है। नकारात्मक गुण यानी कि निगेटिव सेंस में कि जितना चाहिए था उतना नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है, उसको नापसंद है, समझे? अब इसका क्षमता पता चलता है। अर्थ में उचित अधिक से इसका रूपांतरण संभव होता है। देखें कुछ उदाहरण जहां टू प्रयोग उचित से अधिक के अर्थ में हुआ, जैसे कि यहाँ पर शी इज टू अगली, वो तो रूप बदसूरत है ही है, लेकिन टू अगली यानी बहुत ही ज्यादा यानी कि बदसूरत, शी इज टू अगली। तो उसका एग्जाम्पल उसी तरह से बन जाएगा जैसे कैसे, द कोट इज टू लॉन्ग हो गया, द कोट इज लॉन्गर देन इट इज प्रॉपर और इट शुड बी। इसी तरह से यहां हो जाता शी इज टू अगली, शी इज अगलियर, यहां पर कंपरेटिव में आ जाएगा, अगलियर अगलियस्ट, कंपरेटिव में लाना है वहां पर। तो शी इज अगलियर देन इट इज प्रॉपर और देन शी शुड बी, कि अधिक से ज्यादा है, उचित से ज्यादा है यानी कि वो बदसूरत है, समझिए ना। इसी तरह से ही इज टू टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबा है, समझे ना। ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर और देन ही शुड बी होना चाहिए वहां पर, समझे ना। ही इज टू टॉलर बहुत ज्यादा, उचित से अधिक लंबा है। दे ड्राइव टू फास्ट, वो बहुत ज्यादा तेज चलाता तो है तेज, लेकिन टू फास्ट बहुत अधिक तेज चलाता है, जितना तेज चलाना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं तो 60 से 38 पर ये नहीं कि 120 पर चलाइएगा, 60-70 चलाना तेजी है, मगर और चलाइएगा तो उसमें एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ही इज टू वीक टू वॉक, जैसा कि आपको हमने बताया है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। अब यहाँ है ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, समझे ना, इतना कमजोर है। ही इज टू अगली फॉर ए फिल्म हीरोइन। अब यहां पर देखिए, यहां पर ही इज टू अगली, वो इतनी बदसूरत है, करूप है, फॉर अ फिल्म हीरोइन, समझे ना। यानी हीरोइन को सुंदर होना जरूरी है, आवश्यक है, अदरवाइज दैट गर्ल वुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय द डायरेक्टर और फाइनेंशियर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज। सूरत रहेगा तभी ना भाई, और सूरत में नहीं रहेगा तो हीरोइन बनेगी। उसके लिए तो एकदम अनिवार्य रूप से पहला ये है कि भाई शर्त कंडीशन के सुंदर तो ही कह रहा है। शी इज टू अगली फॉर ए फील्ड हीरोइन, तो इसका हम इस तरह से बना देंगे, समझे। शी इज सो अगली दैट शी कैन नॉट बी अ हीरोइन, शी इज सो अगली दैट शी कैन नॉट बी ए फिल्म हीरोइन, यानी कि वो इतनी बदसूरत है कि फिल्म हीरोइन नहीं बन सकती है। अच्छा, ऊपर में युक्त वाक्यों में टू का रूपांतरण रिमूवल ऑफ टू हेतु निम्नलिखित नियमों का वर्णन करना, प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इसका जानना जरूरी है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव है, प्रयोग सब्जेक्ट है वर्ब रहे, जैसे कि सब्जेक्ट में आ गया शी, वर्ब में आ गया इज, टू, अब एडवर्ब या एडजेक्टिव लगाइए, हमने शी इज टू अगली या शी इज टू ब्यूटीफुल, तो आगे ना उसमें सेंटेंस में, तब उसको कैसे हटाना है? पहले टू को हटा दिया जाता है, टू को वहां पर हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब, जैसे कि आपका आ गया एडजेक्टिव में सुंदर आ गया ये सब। अच्छा, तो हटा देता है इसको कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव यानी कि जैसे अगली से अगलियर हुआ तो ये कंपैरेटिव हो गया, और फिर विथ दैन का प्रयोग किया जाता है वर्ब के टेंस के अनुसार, दैन के बाद इट इज, अगर पास्ट टेंस में है तो वहां पर इट वाज हो जाएगा। अब अगर प्रेजेंट में जैसा कि आपको हमने बताया वो इज में आएगा, वहां पर वाज हो जाएगा, दैन सब्जेक्ट है, और फिर शुड बी और या शुड हैव बीन,
होना चाहिए का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसको, या टू को ओवर या एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली में बदल देते, जैसा कि आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा किया। शी इज ओवर ब्यूटी और अगली, शी वॉज एक्सट्रीमली अगली, बताया जा सकता है। कभी कभी टू को हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद मोर देन रिक्वायर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव हटा दिया, मोर देन रिक्वायर्ड, उसको आगे हम लोग देखेंगे सेंटेंस में। अब देखिए एग्जाम्पल उठाइए। ओरिजिनल सेंटेंस है क्या है, ही इज टू नॉटी, नॉटी कहते हैं नटखट को, NAUGHTY, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी का माने होता है नटखट, चंचल, नटखट, जैसे लड़के सब बोलते हैं, बच्चे सब नटखट, नॉटी यानी नटखट, चंचल सब होते हैं, शरारती। ही इज टू नॉटी, देखिए यहां बना दिया गया ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में, ही इज मोर नॉटी देन इट इज प्रॉपर, वो इतना नटखट है कि जितना उसको होना चाहिए था, एक प्रॉपर जो अच्छा होता है जितना, उससे भी ज्यादा है। और फिर या फिर उसमें लगा दीजिए कि ही इज मोर नॉटी देन ही शुड बी, उसको भी लगा सकते हैं जितना उसको होना चाहिए। तो यहाँ पर है यू आर टू टॉल, तुम बहुत अधिक, उचित से ज्यादा अधिक लंबे हो, तो इसका ट्रांसफॉर्म यू आर टॉलर देन इट इज प्रॉपर, और ऑब्लिक यू शुड बी, यानी कि यू आर टॉलर देन इट इज, लिख के भी फुल स्टॉप दे सकते हैं, या फिर यू आर टॉलर देन यू शुड बी, इसको लिख के फुल स्टॉप दे सकते हैं। और फिर दूसरा है यू आर ओवर और एक्सट्रीमली टॉल, अगर आप लिखते हैं वहां पर यू आर ओवर टॉलर, तो यू आर ओवर टॉल सही है, यू आर एक्सट्रीमली टॉल ये भी सही है। तो अगर यहाँ ऑब्लिक दे दिया है कि आइदर यू यूज इट ओवर देयर और एक्सट्रीमली, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट यू हैव टू पुट देयर ओनली वन, नॉट ओवर और एक्सट्रीमली दोनों, एक को क्लियर करना है। यू आर टॉल मोर देन रिक्वायर्ड, यहाँ भी देखिए बताया गया यू आर टॉल, आप तो लंबे हैं, मोर देन रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता से अधिक, जितना चाहिए उससे भी अधिक आप लंबे हैं। अब आइए ओरिजिनल सेंटेंस है, दे वर टू जेंटल, अब यहाँ पर देखिए वर पास्ट टेंस में है तो वर ही आएगा, इस पर खास ध्यान दीजिए। वहां पर इस था, हम जैसा बोर्ड में लिखा वो प्रेजेंट टेंस में प्रस्तुत किया, अब यहाँ पास्ट टेंस में दे वर टू जेंटल, वे लोग बहुत ही जेंटल नेक थे, वे लोग बहुत ही ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, दे वर मोर जेंटल देन इट वाज, वो लोग इतने ज्यादा नेक थे, जेंटल थे कि जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा, या दे शुड हैव बीन, जितना होना चाहिए था, बाकी ये सही है। अब आइए और में, अथवा में, और दूसरा तरीका क्या है, उसके जगह आप ये लिख सकते हैं देवर ओवर या एक्सट्रीमली जेंटल, देवर ओवर और एक्सट्रीमली जेंटल यानी बहुत ही ज्यादा जेंटल नेक है। अब आइए और में, देवर जेंटल मोर देन रिक्वायर्ड, इस तरह से इसको ही बना सकते हैं, ऐसे भी देवर जेंटल, वे लोग तो नेक थे ही, मोर देन रिक्वायर्ड आवश्यकता से अधिक थे, हिंदा में नहीं होना चाहिए। अब आइए ओरिजिनल सेंटेंस में, ही वर्क्स टू हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करता है, टू हार्ड मतलब बहुत ज्यादा। अब इसको सेंटेंस में सब उसी तरह सुनना है, ही वर्क्स हार्डर देन इट इज प्रॉपर, वो जितना जरूरत होना चाहिए उससे ज्यादा मेहनत करता है, या ही शुड वहां पर, या फिर ही वर्क्स हार्ड मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक ज्यादा मेहनत करता है। तो ये सबको ध्यान देना, टू को हटा के सरस कर देना। अब आइए, यदि वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ हो, तो जैसे कि ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा वो। सब्जेक्ट में जैसे कि ही हो गया, इज हो गया, टू हो गया, टू लगा, ही इज टू, एडजेक्टिव वीक, समझिए ना। अब उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव यानी टू, टू लिफ्ट द बॉक्स आ गया आंसर में। अब उसको सीधा सुना देंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। टू को हटाकर सो का प्रयोग किया जाता है, टू को हटा करके सो का प्रयोग किया जाता है, समझे ना। सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब के मूल रूप को प्रयोग किया जाता है। मूल रूप जिस तरह से है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, समझे ना। सो वीक, वीक को तो रखना ही है एडजेक्टिव को, वही कहता है कि एडजेक्टिव को रखना, इन्हें भी करना। अच्छा, वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त टू को हटाकर वर्ब के टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट, अगर पास्ट टेंस में
when the sentence is in the past tense, then you have to use verb. Or if the sentence is in the present tense, then you will have to put there is or are. ये सब तो जानते ही हैं. ओरिजिनल सेंटेंस, he was too frightened to work. Frightened का माने क्या होता है? डरा हुआ. Frightened का माने होता है डरा हुआ. फ्राइटन स्पेलिंग देखिए, FRIGHTENED. फ्राइटन के माने डरा हुआ. डरा हुआ पास्ट टेंस में. फ्राइटन डरा हुआ. He was too frightened to work. वो इतना डरा हुआ है काम करने से, मतलब वो इतना डरा हुआ है कि काम को नहीं कर सकता है. इसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे? टू को हटा के ही वॉज सो फ्राइटेंड. वो इतना डरा हुआ है, वो इतना डरा था दैट ही कुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर सका. समझ गए? अब इसी तरह से आइए ओरिजिनल सेंटेंस में, वी वर टू लेट टू कैच द ट्रेन. वी वर टू लेट, हम लोग इतना ज्यादा अधिक देर से थे टू कैच द ट्रेन, कि ट्रेन को पकड़ने में, यानी कि ट्रेन को पकड़ने में नाकाम हो गए. वी वर टू लेट टू कैच द ट्रेन. समझे ना? तो वहां पर हो जाएगा वी वर सो लेट दैट वी कुडंट कैच द ट्रेन. अब देखिए, वी वर सो लेट दैट वी कुडंट कैच द ट्रेन. हम लोग इतने देर हम लोग हो गई थी कि हम लोग ट्रेन को पकड़ नहीं सके. समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सी प्रीवियस ईयर्स questions, you will find such type of questions mentioned in that question, in the examination. अच्छा भाई नोट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट अस्पष्ट हो, क्लियर नहीं हो सब्जेक्ट, जैसे कि वहां पर था ही, शी, यू, मगर कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें ही, शी नहीं लिखा रहता है बल्कि इट लगा रहता है, तो मतलब सब्जेक्ट अस्पष्ट है. समझ गए? यानी कि अंडरस्टूड है. यदि वाक्य का सब्जेक्ट अस्पष्ट हो तो उसके लिए वन या नो वन या नन का प्रयोग किया जाता है. एवं टेंस के अनुसार नो और नन हेतु कैन या कुड, अगर पास्ट टेंस में कुड, प्रेजेंट में है तो कैन लगेगा, हो जाता है. जैसे यहां देखो, इट इज टू हॉट टू गो आउट. इट इज टू हॉट, इतनी गर्मी है टू गो आउट, कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं. अब यहां पर होता है इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट और नो वन कैन गो आउट. इस तरह से बनाइए. देखिए यहां बना हुआ, इट इज टू हॉट टू गो आउट. इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट. वो इतना गर्मी है कि कोई, वन माने यहां कोई भी लगा, कोई बाहर नहीं जा सकता है, इतनी गर्मी है. दूसरा देखिए ट्रांसफॉर्म कैसे, इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, कि कोई, यहां भी वही हो गया, वन माने कोई बाहर नहीं जा सकता, इतनी गर्मी है. फिर दूसरा इट इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट, कि कोई नहीं जा सकता. वहां भी ही मानी है, नो वन से भी माने होता है. वन माने कोई नहीं जा सकता, नो वन माने कोई नहीं जा सकता, इतनी गर्मी है. और यहाँ है इट इज सो हॉट दैट नन कैन गो आउट. नन के माने भी कोई नहीं होता है. इट इज सो हॉट यानी कि इतनी गर्मी है कि दैट नन कैन गो आउट, कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता. इट डिपेंड्स अपॉन यू इन विच ट्रांसफॉर्मेशंस यू वुड solve out that question, and 3 methods are given there. You, it depends upon you to choose one. किसी एक को चूज कर ले. अच्छा भाई, यदि वाक्य में सब्जेक्ट प्लस टू, एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग होता हो, तो पहला क्या है, टू को हटाकर सो का प्रयोग किया जाता है. जिस तरह से लोग देखते आ रहे हैं कि हर में सो हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं सो हो रहा है. सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है. मूल रूप जैसे लॉन्ग, पुरवल, शॉर्ट जितना है उसको उसी तरह रखना. उसमें कंपैरेटिव ये सब नहीं बनाना है कि लॉन्ग से लॉन्गर करने से नहीं, उसको मूल रूप में रखना है. एडजेक्टिव एडवर्ब के मूल रूप के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है. दैट के बाद सब्जेक्ट तथा वाक्य के अर्थानुसार सब्जेक्ट एक उपयुक्त वर्ब का प्रयोग किया जाता है. इसको हम लोग समझेंगे सेंटेंस से. वहां पे दे दिया गया है, देखिए ओरिजिनल मिराकल है. ही इज टू स्लो फॉर ए रनर. ही इज बहुत इंपॉर्टेंट है. ही इज टू स्लो फॉर ए रनर, यानी कि वो इतना, यानी कि स्लो है, धीमे गति का है, फॉर ए रनर, यानी कि रनर जो होता है दौड़ने वाला, उसको तेज होना चाहिए, मगर वो इतना स्लो है, धीमा है कि वो रनर के लिए नहीं है. इसको किस तरह से बनाएंगे,
he is so slow that he cannot be a runner. He is so slow that he cannot be a runner. वो इतना अधिक चले कि धीमी गति का है कि वो रनर धावक नहीं बन सकता है, दौड़ने वाला नहीं बन सकता है. हो गया. अब आइए यहाँ देख सकते हैं. He is too old for the job. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आता है. He is too old for the job. वो इतना अधिक यानी कि बूढ़ा है जॉब के लिए. समझे नहीं कि जॉब उसको नहीं मिल सकता. He is so old that he is not fit for the job. हो जाएगा वहां पर. He is so old that he is not fit for the job. कि जॉब के लिए पूरा नहीं लायक नहीं है. The tea is too hot for me to take. चाय इतनी यानी गर्म है कि हम इसको पी नहीं सकते. The tea is so hot that I cannot take it. take it को ना पीना है तो हम उसको पी नहीं सकते हैं. He is too strong for me. वो इतना मजबूत है कि हम उसका मुकाबला नहीं करते. He is so strong that I am not a match for it. मैं उसके मैच के लायक नहीं है. मेरे यानी कि बराबरी का वो नहीं है. जब वाक्य में टू मच का प्रयोग हो तो सो बैड सो शॉकिंग वहां पर लगा देना है. जैसे कि ओरिजिनल में इट इज टू मच फॉर मी. यहाँ पर बियरिंग है. यू ह्यूमिलेटेड टू मच दैट इज वाई इट इज टू मच फॉर मी. तुमने इतना अपमान किया कि अब मेरे की बर्दाश्त से बाहर. इट इज टू मच फॉर मी. अब वहां हो जाएगा इट इज सो बैड या शॉकिंग दैट इट कैन नॉट बी बियरिंग. ये इतना शॉकिंग है कि हम इसको सहन नहीं कर सकते हैं. यदि वाक्य इंफिनिटिव के पहले नॉट लगा हो तो इसका स्थान पर विल का प्रयोग होता है. ओरिजिनल सेंटेंस मीरा इज टू जेनरस नॉट टू फीड. यही बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अक्सर लोग भुला जाते हैं. मीरा इज टू जेनरस नॉट टू फीड द हंग्री. मीरा इतनी उदार है, जेनरस है उदार, कि नॉट टू फीड द हंग्री, कि भूखे को ना खिलाए. तो इसमें बिल लगा देंगे. मीरा इज सो जेनरस. वो इतनी जेनरस उदार दिल की है कि दैट शी विल फीड द हंग्री, कि वो भूखे को खाना खिलाएगी. अब आइए यहाँ अरुण इज टू विट्टी नॉट टू साइलेंस. विट्टी कहते हैं बुद्धिमान. ये बहुत तेज है. जीनियस से मतलब है. किसी को भी माफ कर सकता है, उसको विट्टी कहते हैं. अरुण इज टू विट्टी नॉट टू साइलेंस. इसका अरुण तो इतनी विट्टी है, मतलब है बुद्धि मत्ता लगता है, बुद्धि है कि नॉट टू साइलेंस इज क्रिटिक, कि अपने आलोचक को शांत ना करे. तो इसका क्या हो जाएगा? अरुण इज सो विट्टी. वो इतना बुद्धिमान है कि दैट ही विल साइलेंस इज क्रिटिक. वो अपने आलोचक को चुप करा देगा अपने दिमाग से. नाउ हियर are some homeworks and I hope or expect that you will must solve it sort out. She is too selfish to be afraid. वो इतना के स्वार्थी है कि दोस्त होने के लिए. ऐसा कैसे बता देंगे? She is so selfish that she cannot be afraid. इतना यानी कि ये है स्वार्थी है कि किसी मतलब दोस्त से दूर नहीं हो सकता है. The sun is too hot for us to go out. The sun is so hot that we cannot go out. हो जाएगा. He is too short for one actor. जिस तरह से बनाया उसी तरह से समझे. She is too so short that he cannot be an actor. हो जाएगा. The patient is too serious to survive. यानी कि रोगी इतना सीरियस है, गंभीर है कि वो सर्वाइव जिंदा नहीं, जीवित नहीं करता है. The patient is so serious that he cannot survive. वो इतना सीरियस है कि नहीं कर सकता है. The sight was too horrible to see. यानी साइट दृश्य जो था इतना भयानक था कि उसको देखा नहीं सकता. The sight was so horrible that one cannot see. बस हो जाएगा. The child is too strong not to walk the गांधी मैदान. वो इतना स्ट्रांग मजबूत है बच्चा, लड़का ताकतवर शक्तिशाली है कि not to walk the ground, कि वाक टहल नहीं सकता गांधी मैदान. The child is too strong to walk in the गांधी मैदान. इससे बनाइएगा. He is too good, he is too cold to sit in the open. सूत्र बनेगा. The house is too beautiful to be disliked. The box is and the house is too beautiful to be disliked. And the house is so beautiful that it cannot be disliked. लाइट हो जाएगा वहां. The box is too heavy to lift. अरे इतना भारी है कि उसको उठाया. The box is so heavy that one cannot lift it. अच्छा, अभी you are too busy to spare time for a gossip. तुम तो इतने बिजी हो कि गॉसिप बातचीत के लिए भी समय नहीं निकाल सकते हो. तो you are so busy that you cannot spare time for a gossip. In this way, I conclude this chapter today, and it will be recorded in your YouTube. I think that you must revise it through this YouTube. And now, I expect you must prepare for your next examination and swing examination after learning this remove tool. Thank you.